یہ تھے جناب سید عابد علی صاحب، جو کہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر اہل بیت پیش فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب خطیب ولایت حیدر رضا غدیر صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر اہل بیت بیان فرمائیں۔ اس سے پہلے میں پچیس جولائی کو اسی امام بارگاہ میں مجلس کا اہتمام ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ 24 جولائی کا پروگرام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے ظہر امام زمان، بسم اللہ۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولائل علی وشرح صدورنا بمعرفت الولی وملہ القلوبنا بذکر العلی او ابکا عیوننا فی غم العلی۔ الصلاۃ والسلام علی النبی والعلی وزوجۃ العلی وبنات العلی واولاد العلی وشیۃ العلی ونثار العلی۔ اما بعد فقد قال الہ العلی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جی نوکری کا دعا کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آل محمد فرماتے ہیں کہ جب تم محمد و آل محمد کی صف ماتم کو بچھانا اپنے دل میں سوچو، کرواؤ بعد میں۔ مولا فرماتے ہم پہلے قبول کر لیتے ہیں، بعد میں تم کرواتے ہو۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ دامن وقت میں گنجائش ہے نہیں، بس 2-4 جملے آپ کو سبق سنا کے اجازت لیتا ہوں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اجازت ابھی بھائی جان نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ذکر کیا کہ جناب جابر حدیث کسا کے راوی ہیں، اور حدیث کسا میں بار بار چادر کا ذکر ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ چند جملے آپ کو پیش کرنے ہیں، یعنی اس چادر کا مقام کیا ہے، اس چادر کی فضیلت کتنی ہے، اس چادر کی بلندی کتنی ہے۔ اجازت ہے آپ کو بتائی جائے۔ حدیث کسا کے راوی ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ حدیث کسا میں اللہ نے بار بار چادر کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ چادر ہے کہ جناب جبریل نے بھی پوچھا تھا کہ چادر میں کون ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا کہ چادر کی عظمت کیا ہے، اب اس چادر کا مقام کیا ہے، اب اس چادر کی حد کتنی ہے، غور فرمائیے گا۔ تاجدار ولایت کے چھٹے سردار مسند ولایت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں شیعہ کی کتاب تفسیر نور الثقلین سے پڑھ رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تاجدار ولایت کے چھٹے سردار حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا یہ چادر کی عظمت کیا ہے، مولا یہ چادر کی فضیلت کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں چادر کی فضیلت بتانے سے پہلے اگر تم اجازت دو تو میں اس کی تھوڑی سی تمہید بیان کر دوں۔ کہا جی ابنا رسول اللہ آپ بیان کر دیجئے۔ جناب امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بندہ خدا یہ بتا کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی کی روح کو قبض کرتے ہیں،
किसी की रूह को कब्ज कर ले तो क्या वहां भी मौजूद होंगे? कहा जी अबना रसूलुल्लाह, हमने सुना भी है, हमने देखा भी है कि कई जगह पे मौत हो जाती है। जनाब इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं जब एक इजराइल है तो फिर वो हर जगह कैसे पहुंच जाता है? मैंने कहानी नहीं सुनाई नहीं, ये जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद है, तवज्जो फरमाइएगा, ये मेहनत आप तक पहुंचाने लगा हूं। ताजदार विलायत के छठे सरदार मौला इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं वो एक होके हर जगह कैसे पहुंच जाता है। अब गौर कीजिएगा, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ये नौकर है जनाब जबरील के। जुबान से बोलिए जिसे जुबान अल्लाह ने जिक्र के लिए अता की। जनाब जबरील के नौकर कौन है? बोलिए, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। तो हजरत इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं जब एक इजराइल हजारों की जान कब्ज कर लेता है, बस ये कहना था, ये जुमला मौला के मुंह में था। साहिल ने कहा मौला एक होके वो हर जगह पे कैसे पहुंच जाता है? वो 1000 बंदों की रूहों को कब्ज करता है, 50,000 बंदों की रूहों को कब्ज करता है। मौला वो एक होके हर तरफ कैसे पहुंच जाता है? मौला फरमाते हैं पूरी कायनात हजरत इजराइल के सामने ऐसी है कि जैसे किसी के हाथ के हथेली में एक दिरहम रखा हो। आले मोहम्मद आपको, यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1000 बंदों की 50,000 बंदों की रूहों को कब्ज करते हैं। हजरत इजराइल से जनाब रसूलुल्लाह ने पूछा था, इजराइल आप हर एक की रूह को कब्ज कर लेते हैं, एक होके आप हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं? पूरी कायनात आपके सामने कैसी है? ताजदार विलायत के इमाम छठे सरदार इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि तमहीद में बताते हैं उस साहिल को, सरकार फरमाते हैं कि जनाब इजराइल के सामने पूरी कायनात ऐसे है कि जैसे किसी के हाथ की हथेली में एक दिरहम रखा हो। सर उठाइएगा चादर का, मकाम बताने लगा है गदीरी, गौर फरमाइएगा। अब जनाब इजराइल के उस्ताद, जनाब इजराइल के उस्ताद, जनाब इजराइल के सरदार जनाब जबराइल अलैहिस्सलाम है। नबी करीम ने जनाब जबरील को पूछा, जबरील आप ये बताइए कि आपके परों की मुसाफत कितनी है? तो जनाब जबरील फरमाते हैं कि अगर मेरे दोनों परों में से एक नुक्ते को जमीन और आसमान के दरमियान रख दिया जाए तो कायनात खत्म हो जाती है। डीवीडी याद नहीं की, ये तफसीर नूर शकलैन की बात है। मैं शिया बारगाह में खड़ा हूं, कोई भी लेके आए तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर मेरे दोनों परों में से एक नुक्ते को जमीन और आसमान के दरमियान रख दिया जाए तो जमीन और आसमान खत्म हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं। अब आइए चादर पे पूरी कायनात को जो छुपा दे, ये बात जो है ना कमरे में करने वाली है। हैदर रजा गदीरी मिंबर रसूल से पैगाम पहुंचाने लगा है हक का, गौर फरमाइएगा। जो पूरी कायनात को छुपा ले उसे खुदा कहते हैं। जो पूरी कायनात, अच्छा मैं जुमला तब्दील कर दूं, जो एक नुक्ते में पूरी कायनात को छुपा ले वो तो जबरील हो गया। आपकी खामोशी को सलाम। अब जनाब सैयदा का एक लक़ब है हिजाबुल्लाह। आप सोचिए जरा, परेशान होने की तो कोई बात नहीं। अगर 5 फुट 5 इंच का कद हो तो बंदे को कपड़ा लगता है 15 मीटर, 15 फुट 5 मीटर, यानी 60 इंच का बंदा हो। आपकी खामोशी को सलाम। उसको कपड़ा कितना लगता है? 5 मीटर 15 फुट, ठीक है। 5 गज कपड़ा लगेगा छोटी सी चीज को छुपा। अब एक हाथ है, ये टेबल है, ठीक है, ये मिंबर बना हुआ है, ये कपड़ा मिंबर से ज्यादा है, यानी आपने जिस चीज को छुपानी है उसे छोटा होना चाहिए, जिसमें छुपाना है वो बड़ा होना चाहिए। अब भी जनाबे सैयदा की चादर का तुम्हें पता नहीं चला। जो कायनात को छुपा दे वो तो जबरील है, जो अल्लाह को छुपा दे वो जनाबे सैयदा है।
या अली, आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। या अली, बस 1-2 मिनट दरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की जात पे। मैं अपने पे वाजिब समझता हूं जब से मैंने पढ़ा है। आप बुजुर्गों को सबक सुना रहा हूं मैं, तवज्जो फरमाइएगा। किताब का नाम है अल कतरा मिन बहार, किताब का नाम है मदीनतुल मुआजिज, किताब का नाम है तफसीर नूर सकलैन, किताब का नाम है बशारत अल मुस्तफा लिशियत अल मुर्तजा, किताब का नाम है तफसीर मुआरिफ अल कुरान, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, अहले सुन्नत के पाकिस्तान के मुफ्ती रह चुके हैं। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अगर मैं आपको हवाला गलत दूं, कोई भी आके मुझसे बात करे, मैं हवाला दिखाने के लिए तैयार हूं। किताब का नाम है तफसीर मजरी, काजी सनाउल्लाह उस्मानी मुजद्दिदी पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि जब भी आले मोहम्मद का नाम लिया जाए तो अगर कोई बंदा आले मोहम्मद पे दरूद ना पढ़े तो आले मोहम्मद उस बंदे पे लानत करते हैं। हवाला नहीं दिया था मैंने, बस ठीक है। जब भी भाई जाने लगो, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस जाने लगो, परेशान ना हो, मैं जाने लगो। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, भाई भी कह रहे हैं, वो भाई भी इशारे कर रहे हैं, दरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की जात। आखिरी बात है और भाई के हवाले मेंबर गौर है आपकी। जब भी आपने गौर करनी है इस बात पे, जब भी आले मोहम्मद का नाम आए आप पे वाजिब है, वाजिब नहीं औजब है कि आप मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद पढ़े। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं बुलंद आवाज से दरूद पढ़ना दिलों के नुफात को दूर करता है। बस आप अब हाथ उठाइए, सारे हाथ उठाइए, जो मेरी माएँ बहनें हैं वो भी हाथ उठाएं, ये सब हाथ उठाएं, क्योंकि मैंने जाना है तो नारा लगवाना है। जामे विला चढ़ा के कहो, ऐसे नहीं सारों ने कहना ना, जामे विला चढ़ा के कहो। और भाई ये बारगाह है, बुलंद आवाज में लगाएं, जामे विला चढ़ा के कहो, जामे विला चढ़ा के कहो, दिल में अली बसा के कहो, और सीने में जितना जोर है सारा लगा के आज हाथों को सब उठा के कहो। और माना पुकारते हो नहीं सबके सामने, बज़्म अली में आके कहो। और देखो कोई लगाए जहां नारा हैदरी, मौला को दिल में ला के कहो। और कितने ही गहरे जख्म हो सेहत के वास्ते, खाके शिफा लगा के कहो। और जाने न दे तो दूर से बकिए को देखकर कस्मे वफा की खा के कहो। और शेरे लहद ये फर्ज है, दफनाते वक्त भी शानों को तुम हिला के कहो।